ચલો સરખા થઈ જઈએ બધા જ મિત્રોને ગુડ ઇવનિંગ, નમસ્કાર, જય હિન્દ. કેમ છો વાલા મારા મિત્રો? બહુ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છો કે સાહેબ હાઈકોર્ટનું સ્પેશિયલ કરંટ અફેર ક્યારે લાવશો, ક્યારે લાવશો. એક વસ્તુ યાદ રાખો, શુક્રવાર હશે એટલે આપણે વીકલી કરંટ અફેર લઈશું તમારું, હે ને? ઇંગ્લિશમાં છે એટલા માટે. તો એક વીકનું જેટલું પણ કરંટ અફેર હશે એ હું તમને ભણાવી દઈશ. કેટલા? એક વીક. ચલો જણાવી દો ભાઈ, હાજર છો કે નહીં બધા? ચલો ચલો ચલો, ફટાફટ જણાવી દો હાજર છો કે નહીં. તો મિત્રો આપણે હાઈકોર્ટનું જેટલું પણ મહત્વનું કરંટ અફેર છે એ ભણીશું અને બધું જ જે છે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં હશે, એટલે ચિંતા ન કરતા, ગભરાવાનું નથી. બીજી વસ્તુ, આ કરંટ અફેર આપણે જે ભણીશું એ તદ્દન હિન્દી અને ઇંગ્લિશ ભાષામાં હશે. ડ્યુઅલ લેંગ્વેજમાં તમને કરંટ હું આપીશ, સમજાઈશ ગુજરાતીમાં. જે બધું છે એ તમને ઇંગ્લિશમાં પ્રાપ્ત થશે. તો એ મસ્ત મજાનું આપણે આયોજન કરેલું છે. અને હા, તમને ખાસ કહું કે હમણાં જ રિસેન્ટલી હાઈકોર્ટ સ્ટેનોગ્રાફર જે ઇંગ્લિશની એક્ઝામ હતી એ પૂરી થઈ અને એ એક્ઝામમાં તમે માનશો નહીં 13 માર્કનું કરંટ અફેર હતું. કેટલું? 13 માર્કનું કરંટ અફેર. બહુ મોટો રેશિયો ગણી શકાય મિત્રો. 40% ક્વોલિફાઈ લાવવાના હોય અને એમાં આટલા જ માર્ક, 12 માર્ક જો કરંટ અફેરમાંથી મળે તો સારું કહેવાય કે ન કહેવાય? કહેવાય, હે ને? તો ચલો, તમારી એકવાર ગ્રીન ફ્લેગ હોય તો હું શરૂઆત કરી દઉં ભાઈ. ગ્રીન ફ્લેગ હોય તો શરૂઆત કરી દઉં, ફટાફટ જણાવી દેજો. ઓકે, તો મિત્રો શરૂઆત કરી દઈએ છીએ આપણે એક એક ઇવેન્ટ. ધીમે ધીમે આપણે સમજીશું. ચલો, ડન છે? હા. તો મિત્રો સૌથી પહેલા તમારા માટે ક્વેશ્ચન બને છે, હમણાં રિસેન્ટલી ક્વેશ્ચન બન્યો મે 2024માં. જો આ પહેલું વીક આપણે લેવાના છે ને, તો 1 જૂનથી બરોબર 15 જૂન સુધીનું જે કરંટ અફેર છે એ હું તમને ભણાવવાનો છું. તો યાદ રાખજો, આ મેનો ડેટા પણ અમુક આવશે. શું આમાં ધ્યાન દેવાનું છે તમારે એ હું તમને કહીશ. તો તમે એ વસ્તુનું ધ્યાન અવશ્ય રાખજો. હું જે તમને કહું એ તમારે તૈયાર કરવાનું છે. એક્સ્ટ્રા તમારે એફર્ટ જે છે એ વાંચવામાં લગાડવાના છે, મગજ દોડવામાં નથી લગાવવાનું. આ પ્રોમિસ કરી દો પહેલા, તો તમે પાસ સારી કક્ષાએ થશો. સૌથી પહેલા ક્વેશ્ચન છે, મે 2024માં યુપીઆઈ લેનદેન કેટલાની હતી? એટલે કે યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન મે 2024 ઇઝ બ્લેન્ક. તો એ જવાબ આપે છે 14.04 બિલિયન. આટલું ટ્રાન્ઝેક્શન હતું. તો આના સાથે આપણો શું લેવા દેવા? આ ઓપ્શન સાથે આપણો 0 લેવા દેવા. તો સાહેબ શું કામ લઈને આવ્યા? એટલા માટે તમને ભણાવવા માટે લઈને આવ્યા કે જુઓ શું થાય એકચ્યુઅલીમાં. કે યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન ભલે ને ગમે તેટલા બિલિયનનું હોય, તમારા માટે ક્વેશ્ચન આ બને યુપીઆઈ નું ફૂલ ફોર્મ શું છે, હે ને? કેમ કે હાઈએસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર હતા. તો યુપીઆઈ નું જે પૂર્ણ નામ છે એને કહેવાય યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ. ચલો મને જણાવી દો કે તમે હિન્દીમાં કમ્ફર્ટેબલ છો કે ગુજરાતીમાં? તો મને હિન્દી બોલતા પણ આવડે છે, થોડું ઘણું આવડે છે, તૂટલું ફૂટલું बोलिस. तो सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि भाई यूपीआई का नाम क्या है?
या तो पूरा नाम बताओ। तो क्या नाम है भाई इसका? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई इसका पूरा नाम है। ये पूछ सकता है, फैक्चुअल बेस्ड एग्जाम होती है तो इसमें ये पूछ सकता है, संभावना है कि पूछेगा। डन है। इससे आगे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि यूपीआई हैंडल कौन करता है इंडिया में? कोई तो हैंडल करता होगा। हाँ, कौन है भाई? देख लेते हैं। तो देखिए भाई, कौन है? एनपीसीआई। क्या नाम है? एनपीसीआई एक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है यूपीआई को हैंडल करना। जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है वो एनपीसीआई हैंडल करता है यूपीआई को। तो वो भी नाम याद कर लीजिए, ये भी पूछेगा। एनपीसीआई का नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका नाम है भाई। देख लिया? ओके। तो ये किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत और आरबीआई के अंतर्गत आएगा। डन है। चलो कोई नहीं। तो अभी दूसरी चीज भी पूछ सकता है कि यूपीआई कौन से देशों में शुरू हो गए हैं अभी अभी, पूछेगा भाई। तो रिसेंटली हमने कौन से देश, सिंगापुर और यूएई, उसके साथ एमओयू किए हैं जिसमें यूपीआई वो देश के लोग भी यूज कर सकते हैं। इसके सिवा, यूपीआई के सिवा हमने नेपाल के साथ एनपीआई के भी करार किए हुए हैं, श्रीलंका के साथ भी करार किए हुए हैं। तो दोनों चीजें अपने को याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आरबीआई का भी मामला है। हाँ, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। डन। तो ये पता होना चाहिए। डन। आगे अभी ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी आपको आरबीआई के मामले में। ये क्वेश्चन उतना बड़ा इफेक्ट नहीं करेगा आपकी एग्जाम को। जो बैंकिंग की एग्जाम आपकी है तब ये आपके लिए काम का है। पर अगर बैंकिंग आपके लिए नहीं है, यानी कि बैंकिंग की एग्जाम आप नहीं दे रहे हो, तो कुछ काम का नहीं है। सीधे अपने चले जाते हैं करंट के इशू पे। क्या इशू क्या है? तो आरबीआई ने क्या किया है कि 2024 का जो दूसरा क्वार्टर है, बराबर, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी જે છે, गुजराती है कि नहीं, वांधो नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी बना दी है। तो क्या है भाई, देख लेते हैं। तो पॉलिसी में अपने को कुछ लेना देना है नहीं, सीधा आपको ये पूछेगा। क्योंकि आरबीआई करंट में इसलिए है क्योंकि अभी दूसरे क्वार्टर के लिए उसने क्या बनाई है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है। 3-3 महीनों की वो पॉलिसी बनाता है। तो आरबीआई, उसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है भाई? शक्तिकांत दास उसके गवर्नर है। चलो डन, इतना तो पता चल गया। ये सीधा पूछता है। डीवाईएसओ की एग्जाम जब आपकी होगी, हाईकोर्ट डीवाईएसओ, इसमें सीधा पूछता है ऐसा। प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे होंगे, क्वेश्चन पेपर, तो उसमें पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और दूसरी चीज, मेंस में भी ऑल्सो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, तो ध्यान रखना भाई आप लोग। दूसरी चीज, चलो फर्स्ट आरबीआई पॉलिसी वो अनाउंस हुई है अभी इलेक्शन के बाद। डन है। तो पूछा ये जाएगा, इकोनॉमी आपका सब्जेक्ट होगा तो क्या पूछा जाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसमें कितने बंदे होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। कितने? 6 मेंबर होते हैं। उसको हेड कौन करता है? गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, वो इसको हेड करते हैं। याद रखना। तो ये याद रख सकते हो। फिर मॉनेटरी पॉलिसी को याद रख लिया तो फिर एक बार ये भी देख लो कि भाई आरबीआई क्या है, तो उससे भी मार्क आ जाए। तो पूछेगा आपको, क्या पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो फटाक दे के जवाब देने का मजा आवे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1934
फाइको हुई, उसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो बता देना मुंबई में है भैया, और गवर्नर पूछ ले तो बता देना शक्तिकांता दास है। क्लियर? डन है। आगे जाते हैं भाई अपने। ये बैंकिंग के करंट अफेयर है तो ज्यादा इसको हम इग्नोर करेंगे, मैं बताऊं उतना ही करना है आपको, क्योंकि मेरी पीडीएफ कंपाइलेशन होती है, यानी कि सब चीजें मिला के उसको उसको बनानी पड़ती है। तो आपके अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, वो ध्यान रखना। क्योंकि पीएचडी करना अपना मकसद नहीं है, पीएचडी अपने को नहीं करनी है, बरोबर, अपने को एग्जाम पास करनी है। तो देख लेते हैं भाई। ये आपके काम का है, क्या है? Which ministry signs MOU to expand स्पर्श सर्विस सेंटर्स? ये पूछ रहा है कि स्पर्श सेवा केंद्रों के विस्तार के लिए किस मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पूछेगा तो जवाब दे देंगे। कौन सा मंत्रालय आएगा? स्पर्श। तो उसके लिए याद रखना रक्षा मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आएगा, थोड़ा याद रखिएगा। तो क्या है भाई ये स्पर्श? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके साथ पेंशंस के लिए एमओयू किए, याद रखें। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस पूछ लेगा भाई, यूनियन मिनिस्टर कौन है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के? राजनाथ सिंह, अभी अभी शपथ ग्रहण की है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के कौन बने हैं? अजय भट्ट। तो ये भी याद रखना। हाँ, ये थोड़ा याद रख सकते हो, क्योंकि ऐसे प्राइवेट एंटिटी भी पूछ लेता है कभी कभार। तो क्या है मामला, क्या है अभी? तो मामला देख लेते हैं। अशोक लेलैंड, जो गड्डी बड्डी होती है, फोर व्हीलर, वो सब ये बनाने वाली कंपनी है, बसेस बनाती है, हेवी ड्यूटी व्हीकल ये बनाती है। तो पूछा है कि अशोक लेलैंड है, उसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछा गया है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अशोक लेलैंड? तो क्यों चर्चा में क्यों है भैया? तो इसलिए ये चर्चा में है क्योंकि ये कंपनी ने, अशोक लेलैंड, जो ज्यादातर हैवी ड्यूटी व्हीकल यानी कि ट्रक बनाती है, तो इसने क्या किया है कि अपने ट्रक ड्राइवरों के लिए 10 लाख रुपए का, जो अशोक लेलैंड की गाड़ी चलाएगा वो ट्रक ड्राइवर ऑटोमेटिकली हकदार रहेगा। अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 लाख रुपए की राशि के लिए वो हकदार रहेगा, कंपनसेशन के लिए वो हकदार रहेगा, इसलिए वो चर्चा में। डन? ओके, चर्चा कर दे दो। अपने को उतना ही पता होना चाहिए कि अशोक लेलैंड चेन्नई की कंपनी है, उसके सीईओ शेनु अग्रवाल है, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि उसने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है सारथी सुरक्षा पॉलिसी। क्या है? सारथी सुरक्षा पॉलिसी। वो पॉलिसी है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, जो ड्राइवर कम्युनिटी है उसको दी जाएगी, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए का पर चेसिस, बरोबर, डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डेथ कवरेज जैसे है वो उसको मिलेगा। डन है? वो याद रखना, क्योंकि ऐसी चीजें याद रखनी पड़ती है। कभी टिक करके मत आना ऐसा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है, नहीं भाई, अशोक लेलैंड कंपनी की स्कीम है, तो इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है, देखना भी पड़ता है। डन। ओलेग कोनोनेंको become the first person to spend a cumulative 1000 day in space. He is from which country?
तो अभी अभी एक रिकॉर्ड बनाया गया है कि भाई कोनोनेंको, एक व्यक्ति जिन्होंने स्पेस में सबसे ज्यादा टाइम बिताने का रिकॉर्ड अपने सर पर ले लिया, यानी कि कायम कर दिया है, तो वो कहाँ के हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो वो है रूस के। कहाँ के हैं भाई? रूस के। तो ये याद रखिएगा भाई, ये पूछेगा ये। तो क्या है भाई, मामला क्या है, देख लेते हैं। रशियन कॉस्मोनॉट बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड cumulative 1000 डे इन स्पेस। नाम देख लेना एक बार, याद भी रख लेना, ओलेग कोनोनेंको, याद रख लेना इसको। क्यों सर ऐसा? क्योंकि ऐसा फैक्ट पूछता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भी कौन सी भारतीय महिला, भारतीय ओरिजिन की महिला स्पेस में सबसे पहले गई है। ऐसा भी पूछा गया है कि चंद्रमा पे यानी कि मून पे सबसे पहले पांव रखने वाला इंसान कौन था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये याद रख सकते हो, भी करंट का है तो याद रखना ही है, 12-13 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये बंदे ने कहा बिताया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, जो 5 कंट्री ने मिलकर बनाया है, तो वहां ये बंदा रुका था, ये भी याद रखना। इनकी एज की बात करें तो 59 ईयर की इनकी एज है। ये कब गए थे? तो सितंबर 15 2023 को वो वहां पे थे, और सितंबर 23-24 को इधर लाना था। तो उन्होंने कुल मिला के 1110 दिन स्पेस में स्पेंड किए हैं। तो ये याद रखना भाई। इसके आगे कौन था भाई? तो याद रखना, जिनेडी पटेल का, इनके आगे जिनेडी पटेल का था, पटेल का, उसने सबसे ज्यादा दिन स्पेस में बिताए थे। अभी अभी करंट अफेयर में सुनीता विलियम्स है, उन्होंने भी 365 दिन से ज्यादा का वक्त स्पेस में बिताया है। वन ऑफ द बेस्ट वुमेन बनी है कि 3 बार वो स्पेस में गई है। तो याद रख सकते हो ये सब। ये पूछेगा, मोस्ट आईएमपी है, प्रवाह सॉफ्टवेयर क्या पूछेगा? वायुगतिकीय डिजाइन और, देखिए, वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर कौन विकसित करता है, यानी कि प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? हमने बार बार गुजराती में भी ये करंट अफेयर पढ़ा है और बार बार बोला है कि ये पूछेगा 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 और पूछ सकता भी है। तो भाई प्रवाह सॉफ्टवेयर है वो किसने डेवलप किया है? तो भाई किया है इसरो ने। किसने? इसरो ने। क्यों किया है भाई? अपने जो हवाई जहाज होते हैं, अपने जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, उनको गति देने के लिए उसमें एरोडायनेमिक होना बहुत जरूरी है, यानी कि जो एरोडायनेमिक डिजाइन है उसमें होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो क्या होगा भाई? फ्रिक्शन क्रिएट होगा और उससे नुकसान भी हो सकता है, फ्यूल कंजप्शन ज्यादा हो सकता है, स्पीड कम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए अपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है इसरो ने, जिसका नाम है प्रवाह। वो क्या करेगा सॉफ्टवेयर? डिजिटली डिजाइन को सॉफ्टवेयर में एनालाइज करके बता सकता है कि अगर हवा की स्पीड इतनी है तो ये डिजाइन क्या कर सकती है, उसके साथ क्या हो सकता है, कितनी उसकी स्पीड हो सकती है, सब ये सॉफ्टवेयर एनालाइज करके देगा। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जा सकता है भाई? तो इसरो को दिया जा सकता है, वो भी याद रखिएगा। चलो, इसरो का नाम आया, सीधी बात है, तो इसरो को भी पढ़ लेंगे भाई। हाँ, पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या चीज है इसरो।
तो इसरो की बात करें तो इसरो जो प्रवाह की बात करें, इसरो इट्स विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हैज इंट्रोड्यूस द प्रवाह सॉफ्टवेयर। इसरो के एक सब्सिडरी संस्थान जिसको बोलते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उसने ये प्रवाह सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया है, जिसका काम होगा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स टूल, यानी कि कंप्यूटर की मदद से जो फ्लूइड डायनेमिक है उसकी चर्चा करना, चर्चा यानी कि उसकी एनालाइज करना, वो उसका काम है। जो एरोडायनेमिक डिजाइन है उसको एनालिसिस करेगा, किसके लिए भाई? एरोस्पेस व्हीकल के लिए। तो प्रवाह का पूरा नाम जो है वो क्या बोला जाता है? तो मित्रों याद रखिएगा, पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस, ये इसका प्रवाह का पूरा नाम है मित्रों। याद रखना, 100% याद रखना, मैं श्योरिटी से बोल रहा हूं, ये पूछा जा सकता है। डन है? डन है। तो अपने हिस्से में वो भी आता है कि इसरो के बारे में भी पढ़ ले। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी अगर पूछ ले बच्चों तो बता देना, 15 अगस्त 1969, ऐसे ही बोला जाए, 1969 को उसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलोर कर्नाटका में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन की बात करिए तो श्रीधर सोमनाथन इसके चेयरमैन है। सैल्यूट है इस बंदे को, उसने पॉजिटिवली इसरो को आगे बढ़ाया है, जिसमें सबसे बड़े 2 मिशन चंद्रयान 3 और आदित्य L1 शामिल है। उससे भी आगे ये देख सकते हो प्रवाह सॉफ्टवेयर, उससे भी आगे इसरो ने PSLV के लिए विप्रो 3D के साथ MOU किए हैं, जिसमें विप्रो 3D उसको एक 3D प्रिंटेड इंजन बना के देगा। तो काफी हम ग्रो कर रहे हैं अभी स्पेस सेक्टर में भी। तो एक भारतीय होने के नाते हमको क्या है भी गर्व होना चाहिए। डन। तो डिफेंस रिलेटेड न्यूज अभी अभी कौन सी है भाई? तो 2-3 न्यूज है वो देख लेते हैं। DRDO ने फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, किसका? रुद्रा M2 मिसाइल का। अब पूछा जाएगा आपसे कि रुद्रा M2 एयर मिसाइल है वो कौन सी है? तो मित्रों ये मिसाइल जो है वो एयर टू सरफेस मिसाइल है। एयर यानी कि हवा से छोड़ी जाने वाली ये मिसाइल है जो जमीन पे पटकनी है, यानी कि हवा से जमीन पे मार करने वाली ये मिसाइल है। किसने बनाई है? तो DRDO ने बनाई है। डन। कहां से छोड़ी जाएगी, इसका लॉन्च पैड कौन होगा? तो सुखोई 30 जो अपना एयरक्राफ्ट है उससे ये लॉन्च की जाएगी। और ओडिशा कोस्ट पे इसका क्या हुआ है? एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो गया है। डन। ओके। दूसरी भी न्यूज थी प्री फायर मिशन के लिए। तो प्री फायर मिशन क्या है? तो याद रखना मित्रों, नासा के द्वारा लॉन्च किया हुआ ऐसा मिशन जो अर्थ के जो 2 पोल्स है, यानी कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल, दोनों पोल्स, यानी कि बोल सकते हैं एंटार्क्टिका या आर्कटिक, दोनों चीजों को साथ में मिला के वहां से पीछे, वहां जो भी गर्मी जाती है, उष्मा जो भी गर्मी जाती है किसकी भाई? सूर्य की, वहां से रिफ्लेक्ट होती है रेज के द्वारा। तो रिफ्लेक्टेड जो रेज है उसको एग्जामिन करेगा और वहां से पता लगाएगा कि कितनी गर्मी वापस छोड़ी जाती है, कितनी वहां रहती है। जो गर्मी वहां रहती है तो कैसे ठंडाई वाला ठंडा प्रदेश है उसको कैसे हानि पहुंचाती है, यानी कि हानिकारक है उसके लिए। तो वो सभी चीजें इससे नापी जाएगी, जिसका मिशन का नाम है प्री फायर मिशन। किसका मिशन है पूछेगा मित्रों, तो किसका मिशन है? नासा का मिशन है मित्रों, याद रखना। और दूसरा ये भी पूछ सकता है प्री फायर मिशन जो है उसका पूरा नाम क्या है? तो मित्रों याद रखना, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द
फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन, ये इसका पूरा नाम है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। ओके, तो अच्छे से याद रखिए। क्लियर? अभी दूसरा कुछ याद नहीं रखना है, ये दोनों मिशन आपको अच्छे से याद रखने हैं। फिर दूसरी चीज ये अपने को अगर देखना हो तो देख सकते हो, मैंने अभी बात की इसकी। क्या बात की? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड विप्रो 3D हैव सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर्ड अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन द PS4 सेट टू पावर एंड फोर्थ स्टेज ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। मैंने अभी अभी आपको बात की कि इसरो ने विप्रो 3D के साथ मिलकर रॉकेट इंजन बनाने का सौदा किया है, MOU किया है, और वो तैयार भी हो गया है। अपने अब भी चर्चा की तो ये करंट अफेयर में आ गए, यानी कि अपने राइट डायरेक्शन में जा भी रहे हैं और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। चलो क्लियर है, देख लेना एक बार। चलो दूसरी चीज ये भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूछ सकता है अर्थ केयर सैटेलाइट है ना, अर्थ केयर सैटेलाइट पूछ सकता है मित्रों। और तो अर्थ केयर का नाम सबसे पहले याद रख लो, अर्थ यानी कि अर्थ पृथ्वी, केयर का पूरा मीनिंग याद रख लेना, क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा जापान स्पेस एजेंसी दोनों मिलके इसको लॉन्च किया है। इसका काम यह है, गर्मी में जो एरोसोल है, एरोसोल यानी कि हवा और सॉलिड्स, वो कितनी रेडिएशन खुद में से मुक्त कर रहे हैं वो देखने के लिए ये मिशन लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है अर्थ केयर। चलो क्लियर, क्लियर होना चाहिए। ये मोस्ट टाइम भी है जो आपको पूछेगा, बाकी PDF में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ भी सकते हो। दूसरी चीज एक मिशन के बारे में है। अभी रिसेंटली चाइना ने अपना मिशन एक लॉन्च किया था मून के ऊपर। मिशन का नाम है कौन सा? चांग-E6। क्या नाम है? चांग-E6, ये मिशन का नाम है। तो ये किस देश के संबंध में है, संबंधित है? तो सीधी बात है कि अभी मैं बोला कि चाइना के संबंध में है। चाइना ने मून एक्सप्लोर के लिए अपना मिशन छोड़ा था। तो बात करते हैं कि कौन सी है? अपनी इसरो है, अमेरिका की नासा है। तो ऐसे चाइना की कौन सी एजेंसी है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA एजेंसी है, जिसका चांग-6 लूनार मिशन था, लूनार प्रोब, उसने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। तो ये भी याद रख सकते हो आप। क्लियर? डन। तो अपना तो भी आपको पता ही है, लूनार पे अपने 3 मिशन तो भेज दिए हैं। पूछ सकता है जगन मोहन रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो वो आएगा तेलंगाना। क्या आएगा? तेलंगाना। तो पूछ भी सकता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी अभी कौन बने हैं? तो नायडू, अभी अभी बहुत चर्चित थे, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो दूसरा भी पूछ सकते हैं उसमें, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग कब हुए? तो याद रखिएगा 2 जून 2014 को ये क्या हुए? अलग हुए। अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश, उसकी राजधानी हैदराबाद थी, और तेलंगाना की बड़ी राजधानी हैदराबाद थी। तो जब ये एग्रीमेंट हुआ, अलग अलग स्टेट बटे, तब बोला गया था उसके बिल में कि 10 साल के लिए दोनों की जो कैपिटल है वो हैदराबाद रहेगी। पर हुआ यूं कि 10 साल पूरे हो गए। कब? अभी अभी 2 जून 2024 को जब ये साल पूरे हो गए तो एग्रीमेंट क्लोज होगा, यानी कि हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी रहेगी, पर आंध्र प्रदेश की राजधानी वो नहीं रहेगी। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन बनेगा नया? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगा कौन? तो अमरावती।
डन है, क्लियर। दूसरा भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है भाई कि भाई थ्री कैपिटल थियरी जो डेवलप हुई थी उसका क्या। तो नए जो सीएम बने हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि भाई थ्री कैपिटल थियरी हम लागू नहीं करेंगे, अमरावती है वही कैपिटल रहेगी। तो ये याद रख सकते हो आप। तो एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है। तो क्या है भाई, ये डी आंध्र प्रदेश याद रखना। Why as Jagmohan Reddy resigned as Chief Minister of Andhra Pradesh? Jagmohan Reddy sent his resignation to Governor Abdul Nazir. याद रखिएगा। तो अभी अभी ये भी पूछ सकता है कि अभी अभी कौन से रेजिग्नेशन पड़े हैं, है ना, पूछ सकता है भाई। तो तेलंगाना गवर्नर एंड पांडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सौंदर्य राजन सुंदरा राजन, उनके भी रेजिग्नेशन अभी दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड लियो वारडकर, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया है। वो वेन थांग प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम ने रिजाइन किया अभी अभी। सुरिंदर चावला मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेमेंट्स पेटीएम पेमेंट बैंक, यानी कि पेटीएम के सीईओ के पद से सीईओ, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनका नाम है सुरिंदर चावला, उन्होंने भी रिजाइन दिया है। तो याद रखना। और स्कॉटलैंड की फर्स्ट मुस्लिम मिनिस्टर जिसका नाम है हुम्जा यूसुफ, उन्होंने भी रिजाइन किया है। ये याद रख सकते हो। बाकी ये सब चीजें याद रखने की नहीं है, मन में होनी चाहिए, यानी कि अपने को पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। इस वर्ष दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का कौन सा संस्करण दिया गया है। तो जवाब आएगा 11वां। कौन देता है, अनाउंस किसने किया। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA, उसने अनाउंस किया है दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नसीद को मिलेगा। ये याद रखना। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम के लिए। ये याद रखना, निम्नलिखित में से किसे यूएन के WSIS 2024 का चैंपियन पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो वो दिया गया है सेंटर सी डॉट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सी डॉट देख लेते हैं नाम क्या, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सीडॉट्स को WSIS 2024 का पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, आते हैं देख लेते हैं भाई। दिया गया है जो डिजास्टर रेजिलिएंट जो ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग सिस्टम है उसके लिए। याद रखना। मुथूट फाइनेंस का है अपने क्या है, ये पूछेगा। वर्ल्ड ओशंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो 8 जून को ये मनाया जाता है भाई। कौन सा दिवस, तो ये दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे। याद रखना। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि द यूनाइटेड नेशंस मार्क वर्ल्ड ओशन डे ईच ईयर ऑन 8 जून थ्रू द annual event coordinated by Division for Ocean Affairs and Law of the Sea, Office of Legal Affairs, उसके भी आपसे मनाया जा रहा है। थीम कौन सी है भाई, अवेकन न्यू डेप्थ, उसकी थीम है। कौन से दिन मनाए गए अब तक, तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 3 जून को वर्ल्ड क्लब फूड डे, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे,
थीम है उसकी लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रफ रेजिलियंस। 6 जून को यूएस रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया है, याद रखिएगा। तो अभी अभी काफी वो टर्म्स वो आई है करंट अफेयर में, तो देख लीजिए। LOC का मतलब है लुक आउट, सर्कुलर्स, बाकी कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। बैंकिंग के इसमें काफी है, क्योंकि बैंकिंग का भी पढ़ाना होता है, तो उनका और आपका ऑलमोस्ट सेम होता है बैंकिंग अफेयर्स को छोड़ के, तो वो हम स्किप करेंगे। आप भी जब पढ़ोगे तो याद रखना है आपको कि आपको स्किप करना है जो जो बैंकिंग की चीज है उसको, सब आपको पकड़ के नहीं रखना है। PhD नहीं करनी है, सर ने जो दिया वो सबको नहीं पढ़ना है। अपने पास एक कंपाइल होती है, हमको उसमें से पढ़ाना पड़ता है आपके अकॉर्डिंग। तो ये जो पढ़ा रहे हैं, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए सही है, ठीक है, क्लियर। फोन पे अभी करंट अफेयर में था, क्योंकि फोन पे ने अपनी काफी सेवाएं जो है वो एक्सटेंड की है, सर्विसेज। तो फोन पे की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में वो शुरू हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में है। CEO की बात करें तो समीर निगम उसके CEO है, याद रखना। ये पूछ सकता है आपको, किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश में पहला स्थान हासिल किया है? यानी कि किस राज्य की पुलिस है जो नंबर 1 पे रही है, जो साइबर क्राइम में शामिल नंबरों को ब्लॉक किया है उसने? तो सबसे बेस्ट काम हरियाणा सरकार ने किया है, तो ये याद रखना भाई, हरियाणा ने ये काम किया है, फर्स्ट पोजीशन। अबे हरियाणा की बात करें तो कैपिटल चंडीगढ़ है उसकी। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नायब सिंह सैनी ये है। मनोहर लाल खट्टर अभी MP बने हैं, और मनोहर लाल खट्टर को अभी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। तो मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया, और उनके जगह पे नायब सिंह सैनी जो CM बने हैं हरियाणा के, ये याद रखिए। उसके गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय उसके गवर्नर है। और लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी सीट कितनी है? तो 90 सीट है, ये याद रखना आप। नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य जिसको वर्ल्ड हेरिटेज रामसर यानी कि रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो कहाँ आया है? तो देख सकते हो वो बिहार में आया है। तो ये याद रखना भाई, अभी अभी रामसर साइट नई अनाउंस हुई है 2 इंडिया में, तो ये 2 बनी है। तो टोटली अभी भारत के पास 82 रामसर साइट्स है। 2023 में जब अपने 75 ईयर पूरे हुए तो 75 साइट्स थी, अभी बढ़ के 2 एक्स्ट्रा हो गई है। दोनों बर्ड सेंचुरी से बिहार की नागी और नकटी, याद रखना अच्छे से, 82 लास्ट है। The newest wetland of the international importance, both man-made reservation situated in the Jhanja forest range, जमुई डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, यानी कि ये दोनों मैन मेड रामसर साइट्स है, ये भी याद रख सकते हो आप। और अभी अभी 5 जून को जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया गया, तो उस दिन ही ये रामसर साइट अनाउंस हुई है, याद रखना। नागी और नकटी के बारे में तो अभी बात ये कर सकते हैं कि टोटल रामसर साइट कितनी है? तो 82 रामसर साइट है, और इंडिया और चाइना दोनों इक्वल स्टेज पे आ गए हैं कि दोनों के पास अभी सेम रामसर साइट की संख्या है 82। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किसके पास है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, यूके के पास है। किसके पास? यूके के, यूनाइटेड किंगडम के पास।
तो बिहार के पास 3 रामसर साइट्स जो कांवन लेक है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, तो वो 2020 में उसको दर्जा मिला था। नागी बर्ड सेंचुरी की बात करिए तो अपने लिए ज्यादा महत्व नहीं रखती है। बिहार की अगर लोकल एग्जाम होती तो उसके लिए ज्यादा मायने लगती, अपने लिए उतनी नहीं है, अपने को नाम ही याद रखना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभागों के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन में आपको पता चलेगा राजप्रिय सिंह उसका जवाब आएगा, और कुछ है नहीं इसमें। आगे एनजेटी झोंसी जिसका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखना, एजेटी जोन्सी जिसका हाल ही में निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मित्रों याद रखिएगा वो है जीव विज्ञानी। कौन है भाई? बायोलॉजिस्ट। क्लियर? फटाफट बताइए भाई। तो अपने जो भी स्टूडेंट्स है तो अपने करंट अफेयर का लेक्चर इधर रखते हैं। जो भी मोस्ट टाइम भी करंट अफेयर था उसमें से हमने ज्यादातर मुद्दे कवर किए हैं। आपके लिए जो आईएमपी था वो भी कवर किया है। बाकी मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ सुबह 9 बजे। गुजराती में भी अपना करंट अफेयर आता है तो वो देख लीजिए, उसमें भी काफी अच्छी चीजें आपको समझने को मिलेगी। और वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ में आपको देता रहूंगा ऐसे इंग्लिश में, जो आपके लिए भी अच्छी रहेगी। डन। तो मैं अपलोड करके जा रहा हूँ ये पीडीएफ, आप पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट फ्राइडे हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद, बाय बाय।